Everyone, today we start our NCERT exercise 6.2 from the chapter Lines and Angle. और आज हम सब डिस्कस करने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1. In the given figure, find the values of x and y and then show that AB is parallel to CD. As it is very clear to us with the help of our previous lectures that कि जब भी कभी दो लाइंस पैरेलल होती है तो it has corresponding angles equal to each other, pair of alternate interior angles are also equal to each other, as well as the sum of co-interior angles is supplementary. इन सभी बातों को जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, सीखा था, उसे हम यहाँ पे इन क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक अ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हियर. प्लीज़ याद रखो यहाँ पे हम लोगों को ए बी को सी डी के पैरेलल शो करना है. इट मीन्स presently we are not saying that ki lines are parallel. What we have to do, first of all, we need to find out the value of x and y, and after obtaining the value of x and y you need to show that these two lines AB and CD are parallel to each other. तो देखिए बेटा, at present you will simply say that कि ये AB और CD दो लाइन है. I am also giving the name to our transversal. PQ इसका transversal है and I am giving here our name as E and F. तो ये छोटी सी वर्किंग मैंने अपनी तरफ से करी है सो दैट कि वी विल गिव द नेम टू आर लाइंस एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस विद द ट्रांसवर्सल. तो हम लोगों ने यहाँ लिखा सिंस इट इज क्वाइट क्लियर दैट PQ इज अ ट्रांसवर्सल टू लाइंस AB एंड CD. तो PQ AB और CD का ट्रांसवर्सल है. intersects respectively at E and F. और ये ट्रांसवर्सल E and F पे रिस्पेक्टिवली इंटरसेक्ट कर रहा है. According to the information, according to the given diagram, it is very very clear to us that angle PEA plus angle AEF is equal to 180 degree, and the reason for this is linear pair. This is the angles in linear pair. You can easily observe that कि इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 है. PEA AEF, तो ये दोनों ही एडजेसेंट एंगल है, स्ट्रेट लाइन पे है. PQ इसके लिए स्ट्रेट लाइन है. AE इज अ रे जो इस लाइन पे स्टैंड कर रही है, इसलिए ये लीनियर पेयर बना रहे हैं. और एज अ रिजल्ट वी कैन से दैट 50 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री. when you keep simplifying this portion here by shifting the value 50 to another side, the value of x we are going to calculate is 130. So my dear student, we are getting the value of our x as 130 degree. तो मुझे यहाँ पे जो एंगल x मिल गया वो 130 डिग्री मिल गया. तो व्हाट इज अवर प्लानिंग फॉर अ क्वेश्चन कि ये एक ट्रांसवर्सल था जिसने दो गिवन लाइन को E और F पे इंटरसेक्ट करा था. बाय कीप ऑब्जर्विंग इट, इट इज क्लियर दैट ये दोनों ही एंगल का सम 180 है बिकॉज इट फॉर्म अ लीनियर पेयर हेयर, एंड एज अ रिजल्ट द वैल्यू ऑफ x वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन इज 130 डिग्री. नाउ व्हाट वी हैव टू डू हियर, now we are going to another point also. Since we can also say that you can observe from the given diagram कि ये दोनों के दोनों कौन से एंगल्स हैं, these are the angles of vertical pair. तो we can say that since angle EFD, check it carefully, EFD is equal to angle CFQ, and we can simply say that it is a pair of vertical opposite angles, and it is very very clear to us कि जब भी कभी एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के पेयर होते हैं तो अनडाउटफुली दे आर इक्वल. बिना किसी कंफ्यूजन और डाउट के ये इक्वल होते हैं. तो y ऑफ दिस क्वेश्चन इज 130 डिग्री ऑल्सो. तो हम लोगों ने अपने क्वेश्चन का पहला पार्ट कर लिया. फर्स्ट पार्ट में पूछा था विद द हेल्प ऑफ द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. By the simplification here, in the first part we use the linear pair concept, in the second part we use the vertical opposite angle and obtain the value of x and y. Now we are moving to another part where we have to prove that कि जो एंगल जो ये साइड ए बी है वो सी डी के
पैरेलल है। तो अभी हम लोगों ने लिखा ये फर्स्ट, ये सेकेंड, एंड हियर वी कैन से दैट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड it is clear that कि angle x degree is equal to angle y degree equal to 130 degree. This is quite clear to you कि ये जो एंगल x है वो एंगल y के इक्वल है. Why both are equal to each other? Because both have a numerical value as 130 degree. तो अगर ये दोनों ही एंगल इक्वल है, x डिग्री y डिग्री के इक्वल है, मीन्स एंगल AEF एंगल EFD के इक्वल है. बट दिस इज द पेयर ऑफ alternate interior angles. You can easily recheck the data कि अगर हम इन दोनों एंगल को दोबारा से एनालाइज करें और ये कंफर्म हो गया कि दोनों इक्वल है, तो दे आर जनरली मेकिंग अ जेड इन अपोजिट डायरेक्शन. तो एज फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वन एक्स और वाई 180 है, मीन्स एंगल AEF, दिस एंगल AEF एंड EFD दोनों ही इक्वल आ गए. बट दिस इज द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड वी ऑलरेडी से दैट PQ ट्रांसवर्सल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है. तो व्हाट दिस इंडिकेट, तो जब भी कभी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल आता है तो व्हाट दिस इंडिकेट, ये इंडिकेट करता है हेंस द गिवन पेयर ऑफ लाइन्स आर पैरेलल. तो ये जो गिवन लाइन्स है दे आर पैरेलल टू ईच अदर. तो बहुत ही आराम से और ध्यान से विद द हेल्प ऑफ 3 वेरी सिंपल बेसिक स्टेप्स वी कैन ऑब्टेन द आंसर ऑफ अवर NCERT एक्सरसाइज 6.2 पार्ट फर्स्ट. व्हाट यू से हियर, व्हाट यू हैव टू चेक हियर अगेन कि इन दोनों का सम 180 है, बीइंग अ लीनियर पेयर, x आ गया 130. ये दोनों एक दूसरे की इक्वल है, बीइंग अ वर्टिकल अपोजिट एंगल, y आ गया 130. तो x एंड y both we are getting here as 130 each. And after having the value of x and y, it is quite clear that कि ये दोनों ही एंगल पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं. ये एंगल इस एंगल के इक्वल है क्योंकि इट इज मेकिंग अ जेड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. आप चाहे तो x को 130 से भी कंपेयर कर सकते थे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है. तो इस तरह से वी हैव नंबर ऑफ ऑप्शंस नाउ. बट एज वी इजिली ऑब्जर्व दीज टू एंगल्स आर इक्वल टू 130 डिग्री ईच एंड दिस मेक अ जेड हियर. दिस इज द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. और जब भी कभी पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो it is quite clear and sure that the given two pair of lines are parallel to each other. As a result, AB is parallel to CD. Now, beta, consider करते हैं second question of same exercise in which it is given that in a given figure, AB is parallel to CD, CD is parallel to EF, and this is the one of the transversal. In the given question, it is also mentioned that X से Z की जो ratio है वो 3:7 है, and we need to find out the value of X. तो लाइंस पैरेलल गिवन है. हमने ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब एक लाइन दूसरे के पैरेलल होगा, दूसरे तीसरे के पैरेलल होगा, तो इन शॉर्ट दे आर पैरेलल टू ईच अदर आल्सो. तो ये सब एक दूसरे के पैरेलल चल रही है. तो वी स्टार्ट अवर क्वेश्चन हियर. सिंस इट इज गिवन दैट AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF, therefore we can simply say AB which is parallel to CD which is parallel to EF. As a result, AB must parallel to CF. ये जो AD है वो भी EF के पैरेलल होगी. तो वी कैन से AB CD के पैरेलल है, CD EF के पैरेलल है, इसलिए AB और EF एक दूसरे के पैरेलल हो गई. तो as it is clear कि AB is parallel to EF and we can say that we name it as PQ and PQ is a transversal. PQ इस पे ट्रांसवर्सल है. तो therefore आप ये सिंपली कह सकते हो कि ये जो एंगल, इसकी भी नेमिंग कर लेते हैं लाइक ABCDEF. वी कैन से इट एज PQ आ गया तो इट इज RST. दीज आर द कोऑर्डिनेट्स है ना. तो वी आर सिंपली नेमिंग इट कि AB EF के पैरेलल है, PQ ट्रांसवर्सल है, इसलिए जो एंगल ARS है, चेक द एंगल ARS, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल ARS इज इक्वल टू एंगल STQ. ये STQ के इक्वल है एंड द रीजन फॉर दैट इज वेरी वेरी सिंपल हियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. आप बहुत आराम से देखो, यू विल ईजिली ऑब्जर्व दैट
कि these two are the pair of alternate interior angle and why we are saying that कि ये एंगल इक्वल है, क्योंकि जब भी लाइन पैरेलल होती है तो उसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है. एज अ रिजल्ट x इक्वल टू z, x और z की वैल्यू इक्वल आ गई एंड दिस इज जस्ट एज वी हैव टू कंसिडर एज अवर फर्स्ट इक्वेशन. तो मुझे यहाँ से इस पैरेलल पेयर से, किस पैरेलल पेयर से कि ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो ए बी और ई एफ दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गया. और जैसे ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गया, पी क्यू इसका ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल ए आर एस एस टी क्यू की इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा. नाउ वी आर गोइंग फॉर द अनदर पार्ट ऑल्सो, चेक इट वेरी केयरफुली. नाउ बेटा you will observe that AB is also parallel to CD. This is what we have a given information. एक छोटी सी given बात है ये कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है. Therefore, angle ARS plus angle RSC equal to 180 and you will simply say it is co-interior angles. As बेटा you are knowing that consecutive interior angles, consecutive मतलब एक ही तरफ के दोनों interior angles, and it is quite clear कि जब ये दोनों लाइनें पैरेलल थी and we can already say that PQ is a transversal, ये तो अंडरस्टूड ही है, PQ इसका ट्रांसवर्सल था, तो एज अ रिजल्ट पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल इज देयर, इसलिए इन दोनों का सम 180 हो गया. तो ये आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 180. This is the second data we are getting from the given question as the second data. From first and second, जब हमने फर्स्ट और सेकंड को देखा, it is z plus y equal to 180 डिग्री. तो ये जो z plus y है ये 180 डिग्री हो गया. कहाँ से आया ये z plus y? I am just replacing x equal to z, x plus y equal to 180, we replace x with z, तो z plus y 180 आ गया क्योंकि हमने इस जगह पे x को रिप्लेस कर दिया z से. तो हम लोगों ने देखा कि जब x z के इक्वल था, x प्लस वाई 180 था, एक में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगा, एक में कॉन्जिक्यूटिव एंगल का सम सप्लीमेंट्री लग गया, वी गेट दिस रिलेशन. Since it is given that AB y is to z is 3 is to 7, this is the another data given to us. It is again mentioned in our question. तो let we have to say that एंगल y जो है वो तो 3a हो गया और एंगल z जो है वो 7a हो गया. एंड दिस इज द ओनली रीजन आई एम गेटिंग दिस रिलेशन हियर. तो बाय पुटिंग द वैल्यू इन दिस पार्ट, देयरफॉर वी कैन से इट इज 7a plus 3a इक्वल टू 180. पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, लिख दीजिए चाहे तो, पुट द वैल्यू ऑफ y एंड z इन इक्वेशन थर्ड. हमने इसे थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो जैसे ही मैंने y और z की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में डाला, मेरे पास आ गया 10a इक्वल टू 180, a इक्वल टू 180 अपॉन 10, a इक्वल टू 18 डिग्री. द वैल्यू वी आर गोइंग टू कैलकुलेट विद a इज 180 डिग्री. तो देयरफॉर अगर मुझसे एंगल y पूछा है तो y इज 3 इंटू a, इट इज 3 इंटू 18 which is equal to 54 डिग्री. z पूछा है तो इट इज 7 इंटू a, 7 इंटू 180, 7 इंटू 18, तो when you go for it यहाँ पे आ गया 6, 5 कैरी, 126 डिग्री. Are you getting y and z? Now when you think about the value x, because they are demanding upon x, hence x which is already equal to z, and this we get from the equation first. तो जो x की वैल्यू आ गई वो भी आ गई 126 डिग्री. तो माय डियर स्टूडेंट, इन द एंड वी गेट द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन एज 126 डिग्री. तो फाइनली हमें ये कंफर्म हुआ कि जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था, जिसमें दो डिफरेंट पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस गिवन थे हम लोगों को, ए बी पैरेलल टू सी डी, सी डी पैरेलल टू ई एफ, बाय द मीन ऑफ दैट थ्योरम कि अगर ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए, इसलिए ए बी और ई एफ भी पैरेलल हो गए. ए बी और ई एफ अगर पैरेलल है, पी क्यू उसका ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम आएगा, इजीली ऑब्जर्व होगा. जेड बन रहा है, एक ट्रांसफर के लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का जेड बन गया, इसलिए ये एंगल्स इक्वल हो गए. देन वी ऑल्सो कंसिडर दैट कि एक्स और वाई का सम 180 है,
क्योंकि ए बी सी डी के पैरेलल है, ये वन ऑफ द साइड ही है और दोनों इनसाइड द टर्म है, इसलिए इन्हें कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल बोलते हैं और इनका सम भी सप्लीमेंट्री होता है. देन वी रिप्लेस x with z, तो वी गेट z plus y is 180. नाउ इट इज ऑलरेडी मेंशन इन अवर क्वेश्चन कि ये दोनों के रेशियो 3:7 है. वी ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ x and y and z, substituting the values, a become 18 degree, and after having the value of a we get a y, we get a z, and finally we also find out the value of x, and the result we are obtaining from the value of x is 126 degree. Now बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. इन द गिवन फिगर अगर ए बी सी डी के पैरेलल है, ए ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ई एफ सी डी के परपेंडिकुलर है, मीन्स ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये इसके परपेंडिकुलर है, और एंगल ए ई डी, दिस इज द एंगल जी ई डी, दिस जी ई डी इज 126 डिग्री. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए जी ई, देन वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए ई एफ, जी ई एफ, and then there is a need to find out the value of FGE. आपको एक एक करके ये तीनों डॉट्स फाइंड आउट करने हैं. तो लेट चेक दिस वन वेरी केयरफुली. सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है. तो इट इज गिवन दैट सी बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी. दीज टू टर्म्स आर गिवन हियर. परपेंडिकुलर का मतलब होता है दिस इज द सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर, दिस इज द सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर. अगर लिखा है ई एफ जो है वो सी डी के परपेंडिकुलर है, तो इट मीन्स दैट ये जो एंगल एफ ई डी है या जो ये एंगल एफ ई सी है, ये दोनों 90 डिग्री हो गए. दिस इज द सिंबल टू बी रिप्रेजेंटेड एज परपेंडिकुलर. जब एक लाइन किसी दूसरी लाइन पे 90 डिग्री पे फॉल करते हैं उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं. As well as angle GED is also given to us as 126 degree. तो this is the third information in our question. तो सबसे पहले मैंने अपने क्वेश्चन में जो बेसिक डाटा था उसे कॉपी कर लिया. तो as AB is parallel to CD and we can take it as GE as its transversal. GE इसका एक ट्रांसवर्सल है, चेक कर लो. GE is a transversal. Being it is transversal, therefore angle AGE, कौन सा हुआ एंगल AGE? That first dot AGE. Angle AGE is just equal to angle GED, and the reason you have to use it only alternate interior angles, as very known to us that कि जब भी कभी पैरेलल पेयर ऑफ लाइन इज गिवन टू अस एंड देयर इज अ ट्रांसवर्सल ऑल्सो नोन टू अस, तो ये दोनों के दोनों एक बार फिर से जेड बना रहे हैं. दीज आर नोन टू बी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ट्रांसवर्सल का एक राइट में और एक लेफ्ट में है. इसलिए बेटा एंगल ए जी ई की वैल्यू भी 126 आ गई. इट इज 126 and this is the first answer we calculate from the given question. Why we are putting the value of 126? क्योंकि GED already 126 given था. तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने out of that 3 missing angle obtain the first angle here with the value AGE, and this AGE is numerically equal to GED as very clear to us. Being a parallel line, this is a transversal. Because of that we have to say this is the pair of alternate interior angle. After completing this, we need to target about this angle. This छोटा सा जो ये एंगल है, only this one. ठीक है ना. तो मैंने इसके लिए क्या लिखा, since angle GED 126 डिग्री गिवन है, but angle GED is also equal to GEF plus FED. सोचिए और सोचिए, ईजली पता चलेगा आपको. मैंने कहा ये जो पूरा एंगल है GED, दिस इज E, ये जो पूरा एंगल GED है, दिस इज द सम ऑफ दिस एंड दिस एंगल. तो दिस इज द सम ऑफ GEF, GEF भी इसमें ही है, FED भी इसमें ही है. तो यहाँ पे ये कंफर्म हो गया कि GEF प्लस FED इज 126 डिग्री. तो इन दोनों का सम 126 आ गया. Being sum of both of these two angle is 126, but we are already know that
कि ये जो एफ ई डी है वो 90 है, तो यहाँ पे हम इसे भी लिख देते हैं एंगल जी ई एफ प्लस 90 126 डिग्री। रीज़न लिख दीजिएगा, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ये जो ई एफ है वो सी डी के परपेंडिकुलर है, इसलिए जो ये जी ई एफ आ गया है वो 126 माइनस 90 आ गया। ये जो जी ये आ गया, ये 36 आ गया। तो वी कैन सिंपली से दैट द वैल्यू वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फ्रॉम दिस क्वेश्चन इज 36 डिग्री। तो इट इज़ क्वाइट क्लियर कि पूरा एंगल 126 था, वाली वैल्यू 90 थी, तो जो 126 में से 90 को माइनस कर दिया गया, तो बैलेंस वी आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम दिस क्वेश्चन इज 36 डिग्री। तो वी आर गेटिंग द आंसर ऑफ अवर फर्स्ट एंगल एज वेल एज सेकेंड एंगल। तो दिस इज द सेकेंड पार्ट। एक बार रिपीट कर देता हूँ जिससे कि थोड़ा इजी है, जल्दी से समझ आ रहा होगा। ये एंगल इसकी इक्वल है, बहुत सिंपल बात, लाइन पैरेलल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसलिए ये भी 126 आ गया। फिर मैंने कहा इस एंगल को निकालने के लिए जी ई एफ को, इन दोनों का सम 180 है, सॉरी इन दोनों का सम 126 है, बट दिस इज 90 एज परपेंडिकुलर गिवन टू अस, कंपेयर एंड सब्स्टिट्यूटेड, वी गेट दैट एंगल ऑल्सो एज 36 डिग्री। नाउ वी आर मूविंग टू अ लास्ट एंड फाइनल वन, और लास्ट एंगल में निकालना है मुझे एफ जी ई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क इट एफ जी ई, वी नीड टू फाइंड आउट दिस वैल्यू। तो सिंस इट इज क्लियर दैट एंगल एफ जी ई प्लस एंगल ए जी ई equal to 180 degree, and the reason is very easy to say it's a linear pair because AB is a straight line, this is the one of the ray, और whenever a straight line के ऊपर एक ray stand करती है तो उन दोनों एंगल का सम 180 होता है और उसे हम linear pair कहते हैं। We need to find out this value. This is already 126 already calculated by us from equation first. This is the equation first जिसकी वैल्यू 126 थी। So as a result, when you go for the final simplification, the value we have calculated here is 54 degree. So this is the another answer. This is the another value we have to calculate by the mean of using the concept of linear pair. तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड एज नॉर्मली बहुत सिंपल और इजी सा क्वेश्चन निकला। जो पहला एंगल था दिस विल बी ऑब्टेन जस्ट विद द हेल्प ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये जो दूसरा एंगल था उसे 126 में से 90 माइनस करके वी गेट दैट 36, और इस एंगल के लिए लीनियर पेयर का यूज़ करके वी गेट द वैल्यू ऑफ दैट एंगल एज वेल एज 54 डिग्री। ना बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अवर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2. Here it is given that in a given figure PQ is parallel to ST. So this is two lines which is given parallel to each other. The value of angle PQR is given to as 110 and angle of RST is given to us as 130, and we need to find out this angle. हमें angle QRS find out करना है। And beta, when you think about this question, there are number of choice to consider this question here. And out of that, I am doing this question with the help of that one choice. तो हम लोग सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। ड्रॉ अ लाइन AB थ्रू R, थ्रू R का मतलब पासिंग थ्रू R। ड्रॉ अ लाइन AB पासिंग थ्रू R लिख लीजिए, चलिए पासिंग थ्रू R such that AB is parallel to ST। ये जो AB है वो ST के पैरेलल हो। तो here you need to do the construction. Please remember that जब भी कंस्ट्रक्शन करोगे डॉटेड बनाओगे, और ये हो गई हमारी कंस्ट्रक्शन AB। तो मैंने यहाँ पे AB नाम की एक लाइन बनाई जो ST के पैरेलल है। तो दिस इज द वन ऑफ द थिंग, that is why it is the one of the most important question, because we need to consider this concept here. So such that AB is parallel to as ST. Since it is given that PQ is parallel to ST, given है, and we can say that AB is parallel to ST. This is just by the help of that construction. ये वो construction है जो मैंने करी आपके लिए, construction. It implies that PQ parallel to AB parallel to ST. तो ये तीनों ही लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो गई।
As a result, we are in a position to say that PQ is also parallel to AB. तो PQ जो है वो AB के पैरेलल आ गया. PQ AB के पैरेलल है. We get that कि ये लाइन अब तीनों ही एक दूसरे के पैरेलल हो गए. तो now what is he planning to find out this angle? देखो अभी हमारे पास ना दो चॉइस है. हम सबसे पहले इस एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं. दिस इज जस्ट इक्वल टू 130 डिग्री एज इट इज़ द ऑल्टरनेट एंगल. और हम लोग पहले इस वाले एंगल को फाइंड आउट करने से पहले लेट टेक इट एज दिस एज एंगल 1. मैंने इसे एंगल 1 बोल दिया. किसको एंगल 1 बोल दिया? इसको. तो देखिए मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ लेट ये जो एंगल क्यू आर ए है उसको मैंने एंगल 1 मान लिया. लेट एंगल क्यू आर ए इज एंगल 1. तो what I am doing here, I am just using the concept of parallel line and try to find out this angle. तो just for the easiness we take it this as angle 1. तो सबसे पहले PQ AB के parallel है and we can say that RQ is a transversal. ये इसका transversal है. Therefore angle PQR plus angle QRA equal to supplementary, and the reason is co-interior angle या consecutive interior angle, because we know that the sum of consecutive interior angle is supplementary. PQR is already given to us as 110. This we already taking as one angle as we here they are mentioned it equal to 180 degree. तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे सिंपल अरेंजमेंट करते हुए आप बच्चों के लिए फाइंड आउट कर लिया एंगल 1 का आंसर. तो देयरफॉर एंगल 1 इज 70 डिग्री. आप ओरली भी सोच सकते थे कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ये 110 है, तो ये ऑटोमेटिकली 70 होगा. अब जब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, ये 70 डिग्री आ गया, नाउ वी आर गोइंग फॉर द टारगेट. मैंने लिखा सिंस ST इज पैरेलल टू AB. दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ बाय कंस्ट्रक्शन, हमने ये कंस्ट्रक्शन में किया था अभी, इसलिए एंगल TSR इज इक्वल टू एंगल SRA विच इज कंसिडर हियर एज दिस एंड दिस. ये बड़े बड़े एंगल्स की बात हो रही है एंड यू विल से दैट दिस इज द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो आपको बहुत आराम से चीज़ों को सीखना है. तो जो ये एंगल आ गया ना मेरे पास जिसका नाम है SRA, वो 130 डिग्री आ गया. रीज़न इज दैट कि ये जो TSR है वो 180-30 दे रखा था, तो 130 आ गया. बट व्हेन यू चेक दिस एंगल SRA, बट एंगल SRA इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल QRS. दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर. ये जो SRA है वो दो एंगल का सम है. कौन से दो एंगल? एंगल 1 का और एंगल इसका. तो इट इज़ अ सम ऑफ टू एंगल. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 130 डिग्री इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल QRS. ये दोनों का सम आ गया. अब जब मैं बात करूँ यहाँ पे एंगल 1 की, तो इट दैट इज ऑलरेडी 70 डिग्री. वी ऑलरेडी गेट दैट वैल्यू एज 70 डिग्री. तो मेरे को यहाँ पे जो वैल्यू मिल गई वो मिल गई 130 इक्वल टू 70 प्लस एंगल QRS. तो ये जो एंगल QRS आ गया इट इज़ 130 माइनस 70, QRS आ गया दैट इज़ 60. तो बेटा मेरे पास जो रिज़ल्ट आया वो 60 डिग्री आ गया. तो एज अ रिज़ल्ट जो मेरे को इस बार आंसर चाहिए था दैट इज़ द एंगल QRS, उसकी वैल्यू 60 डिग्री है. तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 4 था जिसमें स्पेशली ये पता था कि PQST के पैरेलल है, ये 130 and 110 एंड वी नीड टू फाइंड आउट दिस एंगल. To obtain this angle, we need to make a construction and need to draw a line AB in such a manner कि this is parallel to ST. और अगर ये ST के पैरेलल है और ST PQ के पैरेलल है तो इसलिए ये तीनों ही एक दूसरे के पैरेलल हो गई. Being parallel to each other, ये 110 था तो हमने पहले एंगल 1 निकाला जिसकी वैल्यू 70 आ गई बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल. फिर ये कंप्लीट एंगल इसके इक्वल है एज 130 डिग्री. तो एंगल 1 और एंगल QRS का सम 130 हो गया. और फिर हमने एंगल 1 को इसमें यूज़ करके जब सॉल्व किया तो जो वैल्यू ऑफ QRS आ गई दैट इज हेयर 60 डिग्री. तो प्लानिंग थी
पहले पेयर्स को पैरेलल करा, एंगल 1 निकाल लिया, फिर SRR निकाल लिया ऑल्टरनेट इंटीरियर से, और फिर SRR को दो एंगल के सम के बीच में ब्रेक कर दिया और उससे QRS की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज, जिसमें लिखा है इस गिवन फिगर में ABCD के पैरेलल है। दिस इज गिवन टू अस एंड इट इज ऑल्सो मेंशन दैट कि जो ये एंगल APQ है दिस इज 50 डिग्री APQ एंड एंगल PRD, ये जो एंगल PRD है दिस इज 127 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ रहे हैं इसमें कि ABCD के पैरेलल गिवन है एंड वी कैन टेक इट एज PQ इज अ ट्रांसवर्सल, और मैंने PQ को इसका ट्रांसवर्सल कंसिडर किया है। दिस लाइन PQ इज अ ट्रांसवर्सल, तो देयरफॉर एंगल APQ is equal to angle PQR and you need to just use the reason alternate interior angles. Is this clear? यहाँ से देखो आप कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये सेम है। Why both of these two angles are same? Just because of the reason कि lines are parallel, PQ is a transversal and they are making a Z here, and because of that it is a pair of alternate interior angle. But angle APQ is 50 degree already mentioned. Therefore we can say that जो ये PQR है वो भी 50 डिग्री आ गया। और अगर आप ध्यान दो तो PQR के लिए इन्होंने सिंबल यूज़ किया है X। दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू 50 डिग्री है। तो वी आर गेटिंग द आंसर ऑफ अवर फर्स्ट पार्ट हेयर। तो आप बच्चों ने यहाँ पे ध्यान से देखा होगा कि इट इज़ क्वाइट क्लियर, इन अ सिंगल ऑब्जर्वेशन में ही पता चल गया होगा ये एंगल इसके इक्वल है। बीइंग अ पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल इज गिवन टू अस, दिस इज द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिकॉज ऑफ दैट एंगल x की वैल्यू x डिग्री आ गई, क्योंकि PQR इज नथिंग बट एंगल x ओनली अकॉर्डिंग टू द गिवन फिगर। अब मुझे y के लिए जाना है and now we have to go and find out the value of y। अभी हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे नहीं गए, वहाँ पे हमने एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पढ़नी है, लेकिन एज वी नो डैट कि अभी मुझे वो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम नहीं लगानी है या एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं लगानी है, तो व्हाट आई एम डूइंग है, आई एम गोइंग फॉर दिस सेकेंड पार्ट। मैंने सेकेंड पार्ट में फिर से लिखा एज AB इज पैरेलल टू CD, एक बार फिर से ये गिवन है, लेकिन इस बार जो ट्रांसवर्सल है एंड PR is a transversal. Check the transversal from the given figure first of all. We can say that ये जो PR है ये transversal है। Being a transversal, we can say that वो जो एंगल APR है that is just equal to angle PRD, and the reason for that is again very same, alternate interior angles. Check from the given figure. इट इज़ मैंशन डैट ये जो पूरा एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है, एंड द रीजन फॉर डैट इज अगेन वेरी सेम, इट इज़ ऑल्सो मेकिंग अ जेड देयर, इट इज़ अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल इज गिवन टू अस। बट हियर सिंस वी नो डैट ये जो एंगल, इसे मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, ये जो एंगल APR है दिस इज नथिंग बट अ सम ऑफ 50 डिग्री प्लस y। जस्ट ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, ये जो APR है दिस इज नथिंग बट अ सम ऑफ 50 डिग्री एंड y, ये 50 और y को ऐड करके बना हुआ है, एंड और वो जो एंगल PRD है दैट इज ऑलरेडी गिवन इन अवर क्वेश्चन एज 127 डिग्री। ये थर्ड इंफॉर्मेशन गिवन है। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट डाटा कहता है APR और सेकेंड कहता है APR को लिख दो जी 50 plus y. I am just substituting APR with 50 plus y, which is equal to PDR 127. So y is 127 minus 50. Y of the question is 77 degree. So my dear student, we are again getting the answer of our question number 5 in a very simple and easier manner. तो आप देखो कितने easy है ये सब question, and they are generally based on the concept of parallel lines, transversal, एंड मोस्टली क्वेश्चंस में अब तक अप्लाई हो रहा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल,
sum of consecutive interior angle is 180, or maybe we are using the concept of corresponding pairs. In the question number 5 here, ABCD के parallel था, PQ transversal था, just because of this reason x और 50 सेम हो गए, and we get the first part. फिर मैंने कहा ABCD के पैरेलल है, PR ट्रांसवर्सल है, इसलिए एंगल APDR PRD के इक्वल होगा, लेकिन APR खुद 50 प्लस y है एंड PRD खुद 127 है. कंपेयर इट, सिंप्लीफाई इट एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ y ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज 77. Now beta, we are moving to our last and final question of the exercise 6.2 of our NCERT, and one of the important question here. As it is given that in a given figure, PQ and this is PQ and RS are the two mirrors which are placed parallel to each other. This is RS, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखे गए दो मिरर है. A incident ray AB strike the PQ at B, एक रे AB से चली और PQ पे B पे स्ट्राइक करी, रिफ्लेक्ट हो गई और फिर उन्हें RS को C पे रिफ्लेक्ट करा, स्ट्राइक करा और वहाँ से फिर एक और रे निकली जो CD के लिए चली गई. पढ़ लेते हैं आराम से. An incident ray strike the mirror PQ at B. The reflected ray moves along the path BC and strike to mirror RC at C and again reflect back along CD. We have to verify that these two lines are parallel to each other. इन दोनों को parallel verify करना है. So it is a one of the question of proving. So we need to write the given statement here. So here it is given that PQ and RS are two mirror placed parallel to each other. Are two mirror placed parallel to each other. Clear है? फिर आता है to prove. और when there is a need to prove it, we have to verify that AB must parallel to CD. ये जो AB लाइन है वो CD के parallel हो. And to obtain the answer here, we need to also do some construction. So we have to write that also. And that construction is that draw BE perpendicular to PQ and CF perpendicular to RS. तो यहाँ पे हमने ड्रॉ करा BE जो PQ के परपेंडिकुलर है, and here we draw CF जो परपेंडिकुलर है RS के. तो these are the some basic terms we need to consider for the question number 6 here. तो given क्या था कि ये दो पैरेलल मिरर्स है. टू प्रूफ क्या करना है, ABCD के पैरेलल है. कंस्ट्रक्शन क्या करनी थी, we need to draw the two lines that is ABE and CF which are automatically perpendicular to PQ and RS respectively. Now we need to start the proof. अब हम लोगों को start लेना है इसके proof से. तो बेटा when you think the figure very carefully, when you observe the figure very carefully, you will say that since BE is perpendicular to PQ and CF is perpendicular to RS and PQ is perpendicular to RS. Hence, we can simply say that BE is perpendicular to CF. Just visualize the figure. You will easily observe this information here. भाई अगर ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है एंड ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है, तो जब भी कभी दो लाइंस पैरेलल होती है उस पर परपेंडिकुलर बनाए जाते हैं, तो ये जो दो परपेंडिकुलर बनते हैं लाइक ये भी 90 ये भी 90, तो एज अ रिजल्ट ये भी 90 हो जाएगा क्योंकि ये कोइंटीरियर है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे. व्हाई दे आर बिकमिंग पैरेलल हियर, द पॉइंट इज़ वेरी वेरी क्लियर टू अस कि मान लीजिए ये था 90 ये था 90 और ये लाइन थी पहले से ही पैरेलल, तो अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो इसका ये 90 तो ये भी कितना हो गया 90, ये 90 है तो ये भी कितना हो गया 90 एज यू से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, लाइंस हो गई पैरेलल. बट इस क्वेश्चन में आपको इसको वेरीफाई करने की नीड नहीं है क्योंकि वी नीड टू वेरीफाई द टर्म AB इज पैरेलल टू CD. तो दिस इज ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट यू कैन ईजिली ऑब्टेन दैट वैल्यू कि जब ये दो लाइंस आपस में पैरेलल थी और दो परपेंडिकुलर उन दोनों लाइनों पे अगर गिरते हैं तो दीज टू परपेंडिकुलर्स आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर. तो BE CF के पैरेलल हो गया. This is the one thing, one point you have to check and remember. Take it as first.
नाउ बेटा नेम इट एज 1 2 3 4। मैंने इन्हें यहाँ पे 4 एंगल का नाम दे दिया 1 2 3 4। सिंस बेटा बाय यूजिंग law of reflection, by using the laws of reflection, we know that angle of incident is always equal to angle of reflection। शायद आपको भी याद हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। बेसिकली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो होते हैं। आपने फिजिक्स में कहीं ना कहीं ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन डिस्कस किए होंगे, पढ़े होंगे कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल एंड इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे। इसे नॉर्मल बोलते हैं जो परपेंडिकुलर लाई ऑन अ सेम पॉइंट। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वी नो दिस। बिकॉज ऑफ दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। वी नीड टू टेक इट एज सेकेंड एंड दिस इज एज थर्ड। तो आप लोग देख लो यहाँ पे मैंने कहा एंगल 1 2 के इक्वल है, एंगल 3 4 के इक्वल है। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन की दिस इज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वी हैव दीज टर्म्स दीज वैल्यूज हियर। तो अब तक मैंने क्या क्या किया, पहले गिवन लिख लिया, टू प्रूफ लिख लिया, कंस्ट्रक्शन कर ली। कंस्ट्रक्शन में जब ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर ड्रॉ करी, दो पैरेलल प्लेन के, दो पैरेलल मिरर के, तो इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट कि वो दोनों भी पैरेलल हो गए एंड दैट इज द पर्टिकुलर रीजन, बट देयर इज नो नीड टू स्पेसिफिकली मेंशन दिस रीजन हियर। देन आई एम यूजिंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड सेइंग दैट 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है। अब हम लोगों को इससे आगे चलना है। Since we finally we know that BE is parallel to CF, this is we have to consider from equation first. ये इसके पैरेलल है एंड BC is a transversal और BC इसका ट्रांसवर्सल है। Therefore angle 2 is equal to angle 3 which is the one of the pair of alternate interior angle। आप सोच रहे होगे ना क्या क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। पहले तो हमने कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा किया, लाइक 1 को 2 के इक्वल प्रूव करना जरूरी था, 3 को 4 के इक्वल करना जरूरी था, वो मैंने सब कर लिया। अब मैं सीधा अपने टारगेट पे पहुंचा, AB को CD के पैरेलल प्रूफ करना है, इसलिए मैंने कहा ये एंगल इसके इक्वल है, 1 2 के इक्वल है। तो ये आ गया मेरे पास फोर्थ स्टेटमेंट। क्यों इक्वल आ गया, क्योंकि वी नो डैट ये लाइन इसके पैरेलल है, BE पैरेलल है BC के, CF के 1 2 के इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो फ्रॉम सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ देखो 1 2 के इक्वल, 3 4 के इक्वल, 1 2 के इक्वल, तो इसलिए एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 ऑल दीज 3 एंगल्स आर इक्वल टू, ऑल दीज 4 एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो सभी एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए। 1 2 के इक्वल था, 2 को 3 के इक्वल लिख दिया, 3 4 के इक्वल लिख दिया, तो 1 2 3 4 ऑल आर इक्वल टू ईच अदर। एज a result we can say that angle 1 is equal to angle 4 also। एंगल 1 एंगल 4 के भी इक्वल हो गया, क्योंकि जब चारों इक्वल हो गए तो 1 के 4 के इक्वल आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 2 3 के इक्वल है, 1 4 के इक्वल है, तो आई एम यूजिंग द कंसेप्ट ऑन एडिंग 4th एंड 5th इक्वेशन वी गेट, देखो एंगल 2 प्लस एंगल 1 एंगल 3 प्लस एंगल 4। मैंने यहाँ जो ये 4th ऑब्जर्वेशन थी और जो ये 5th ऑब्जर्वेशन है इन्हें ऐड कर दिया, 2 को 1 में ऐड कर दिया, 3 को 4 में ऐड कर दिया। तो जब मैं 2 और 1 का सम करूँगा तो इट गिव यू अ वैल्यू एंगल ABC विच इज़ इक्वल टू एंगल BCD। तो ये पूरा का पूरा एंगल भाई 1 और 2 का सम हो गया, ये कंप्लीट एंगल, इसका सम हो गया ये कंप्लीट एंगल, तो ये पूरे पूरे एंगल इक्वल आ गए। सिंस दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि यू विल से दैट दिस इज द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जैसे ही ये कंफर्म हो गया कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, दीज आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वी कैन से दैट AB इज पैरेलल CD, क्योंकि जिस भी क्वेश्चन में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं वो लाइंस आपस में एक दूसरे के
पैरेलल हो जाते हैं। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर एनसीईआरटी 6.2 वेयर वी हैव टू वेरीफाई द गिवन सिचुएशन। तो आपने देखा एक गिवन फिगर में ये दोनों पैरेलल प्लेन्स मिरर्स दे रखे थे जो पैरेलल थे एक दूसरे के। जो इंसिडेंट रे थी ए बी, उनने मिरर पी क्यू को बी पे और बी सी ने मिरर आर एस को सी पे, और फिर रिफ्लेक्ट हो गई थी वो सी डी पे। एंड वी हैव टू प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। एंड हेयर यू हैव टू प्रूव दिस पार्ट वेरी केयरफुली। गिवन लिखा कि दोनों पैरेलल मिरर्स है, ए बी सी डी के पैरेलल है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर, और अभी हमने वेरीफाई किया था कि अगर ये दोनों दो पैरेलल लाइन पे परपेंडिकुलर है तो ये आपस में भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गई। By using the law of reflection we can say that angle of incident is always equal to angle of reflection। इसलिए एंगल 1 2 के इक्वल हो गया, 3 4 के इक्वल हो गया। दिस इज द टू स्टेटमेंट वी ऑब्टेन हियर। सिंस वी नो दैट ई एफ सी एफ के पैरेलल है, आप देख पा रहे हैं बी सी इसका ट्रांसवर्सल है, तो 1 2 और 3 का इक्वल होना कंपलसरी था क्योंकि दैट मेक अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो 1 इज इक्वल टू 2, 2 is equal to 3 and 3 is equal to 4 which indicate us, which confirm us कि ये चारों एंगल इक्वल है, इसलिए 1 और 4 भी इक्वल हो गए। जैसे 1 4 के इक्वल हो गया, 2 3 के इक्वल था, वी ऐड दैट टू स्टेटमेंट। 1 और 2 ने मिलकर दे दिया मुझे एंगल ए बी सी, और 3 और 4 ने मुझे मिलकर दे दिया एंगल बी सी डी। और एज अ रिजल्ट ये बड़ा एंगल इसके इक्वल होते ये वेरी वेरी क्लियर हो गया कि दिस इज ऑल्सो अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एज अ रिजल्ट AB is parallel to CD, which we have to verify in this particular question। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इस पर्टिकुलर लेक्चर में कंप्लीट करी अपनी NCERT एक्सरसाइज 6.2 ऑफ अ चैप्टर लाइन्स एंड एंगल।